Okay, guys, so let's have a discussion over monsoon of India. So, in monsoon, in general, what we have discussed. Uh, wait for. अगर कोई आएगा ना तो मुझे एक बार बता देना एंड उसको अलाउ करना होता है। आज थोड़ा स्क्रीन वो वाला नहीं दिख रहा है। देखो मॉनसून ऑफ इंडिया में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखे थे कल मॉनसून क्या होता है। तो मॉनसून इज बेसिकली रिवर्सल ऑफ विंड, है ना। टोटल रिवर्सल ऑफ विंड। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग्स in short. I am revising all these things so that you can connect with the previous topic, like I mean yesterday's topic or yesterday's classes. इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। टोटल रिवर्सल ऑफ विंड कल भी हम लोग कर रहे थे। टोटल रिवर्सल ऑफ विंड अकॉर्डिंग टू द सीजन। टोटल रिवर्सल ऑफ विंड अकॉर्डिंग टू द सीजन इज नोन एज मॉनसून। ये कल भी बता दिया था मैंने। तो कल की क्लास को थोड़ा सा आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स। Total reversal of wind according to the season is known as monsoon. And there are two types of monsoon, as you know. There are two types of monsoon. The first one is uh, southwest monsoon, and second one is northeast monsoon. Southwest monsoon comes in summer in India. Northeast monsoon comes in winter season. Not exactly winter, but it is about September, isn't it? September, October, that is around winter. This is starting of summer, this comes at starting of winter. Okay, now see. So there are two types of monsoon as I have told you, and the next is the first theory. There are few theories which we are going to discuss regarding monsoon. कल भी हम लोग देखा था। कल का वीडियो एक बार सुन लेना कम से कम। वो थोड़ा सा वीडियो इन्वर्टेड हो गया है, उल्टा हो गया है, स्क्रीन उल्टा हो गया है, बट वॉइस से तुमको पता चल जाएगा हम लोग कल क्या एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, अभी देखो। अभी हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग क्लासिकल थ्योरी देख रहे थे। दो तरह का थ्योरी होता है, क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। तो लेट्स सी फर्स्ट क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी, the first one was thermal concept. Today we'll discuss this thermal concept. Okay, को डिस्कस करते हैं। थर्मल कॉन्सेप्ट क्या है, देखो। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल कॉन्सेप्ट मॉनसून इन क्लासिकल थ्योरी? हम लोग कल बहुत कुछ डिस्कस किया है, इसलिए कल का सेशन जरूर देख लेना। और कुछ भी पूछना होगा ना तुम लोग एक बार बोलना, तुम्हारा वॉइस भी आएगा तो मुझे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रहा है। कुछ भी पूछना होगा बीच में एकदम रोक के पूछ सकते हो, ठीक है ना। मेरा वॉइस वगैरह क्लियर है ना अभी? हु इज देयर, लेट मी सी। यस ताकुम, मेरा वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? तो थर्मल कॉन्सेप्ट देखो क्या है। ये थर्मल कॉन्सेप्ट का बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया का मैप बनाएंगे हम लोग। और इंडिया का मैप बनाना बहुत जरूरी है मॉनसून में, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में नहीं लिखना है तो मेंस में तो करना ही पड़ेगा ना।
आंचल इधर हो गया करके। अब वो इंडिया में थर्मल कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में है, तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय माइंडेड, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय whom? This theory was given by Sir Edmund Halley in 1686. This theory, thermal concept, was given by Sir Edmund Halley. He was a British. So from prelims point of view, you need to remember the name and the year in which this theory has been given. Okay, this theory was propounded by this person in 1686. He was British. What he has said basically, in short, I am telling you about thermal concept. Thermal concept is related with, as I have discussed yesterday, this is all about. Now let's start writing about thermal concept. Let me write here. First, we are discussing thermal concept. So in thermal concept, as this theory was given by Edmund Halley, and this is all about differential heating of land mass and water. Differential heating of land mass and water bodies. Okay, so this concept works on this principle, differential heating of land mass and water. As you know that India is the Indian peninsula basically is surrounded by water from three sides. This is Arabian Sea, this is Bay of Bengal, और उसके नीचे जो है that is ऊपर करने का ऑप्शन मेरे को अभी दिख नहीं रहा है, लेट इट बी। इसके नीचे इंडियन ओशन है, तो यहाँ पर नीचे इंडियन ओशन और इधर अरबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखो, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडीज मींस monsoon is nothing but the seasonal extension of land masses, seasonal extension of land bridges and sea bridges. लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है ये कल बता दिया था मैंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कल का क्लास को एक बार सुन भी लोगे ना तो हो जाएगा। थोड़ा सा इमेज उल्टा हो गया, सुन लेना जरूर है ना। तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडीज में क्या है कि इधर का जो लैंड है वो गर्म होता है, और उसी का साथ में पानी गर्म नहीं होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, सबको मालूम है। लैंड मास इज हीटिंग क्विकली व्हाइल वाटर बॉडीज आर हीटिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे गर्म होता है, इसीलिए डिफरेंशियल हीटिंग बोलते हैं। मान लो ये हीटिंग हुआ 4 बजे 40 डिग्री टेम्परेचर, तो यहाँ पर 4 बजे जाएगा कितना, मैक्स टू मैक्स 30, वो भी गर्मी में 30 डिग्री। देख लो 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो पानी इतना ज्यादा गर्म नहीं होता, एक तो धीरे धीरे होता है और कम होता है, लैंड मास जल्दी होता है और ज्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि पानी का एरिया बहुत बड़ा है वर्ल्ड में, तो टेम्परेचर को फैलने में भी टाइम लगता है चारों तरफ, और टेम्परेचर उतना डेप्थ तक जा भी नहीं पाता है, पूरा ओशन में मिक्स भी नहीं हो पाता है अच्छे से। यहाँ पर 30 डिग्री जाता है यहाँ पर, और यहाँ कॉन्टिनेंट का थिकनेस भी कम है, थिकनेस कम है मतलब सनलाइट आया तो इतना ही दूर को गर्म किया, जल्दी गर्म हो गया, और इतना ही दूर में हीट स्टोर हो गया। लेकिन ओशन का डेप्थ बहुत ज्यादा है, ओशन का डेप्थ 5000 मीटर है पानी, है ना एवरेज, अंदर तक हीट जाने में
टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे ओशन गर्म होता है सेम टाइम में ये। और ओशन में हीट क्या होता है, एक जगह स्टोर नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है छोटा सा जगह में, वो बहुत डेप्थ वाला है, पूरा टेम्परेचर इधर उधर फैल जाता है, और इसलिए ओवरऑल वहां का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल हीटिंग होता है डेली बेसिस पर। कल मैंने बताया था जो हीटिंग होता है उसकी वजह से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलता है ना, कोस्टल एरिया। कौन सा ब्रिज चलता है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। देखो लैंड ब्रिज चलेगा लैंड टू सी, और सी ब्रिज चलेगा सी टू लैंड। ये क्यों चल रहा है, बिकॉज ऑफ लोकल डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। बोला ना, लैंड का टेम्परेचर 40 होगा मैक्सिमम, इसका 30 होगा। जब लैंड का मिनिमम होगा सुबह का 5 बजे, ये तो 4 बजे का बात है, ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना बजे, कल भी कल वाला क्लास जरूर देख लेना, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ so that we can connect all those things with the today's session। तो यहाँ टेम्परेचर 4 बजे ऐसा होता है, तो 4 बजे यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर का मतलब क्या, लो प्रेशर, यहाँ प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बना दे, प्रेशर यहाँ पर लो हो जाएगा शाम को 4 बजे। और इधर प्रेशर क्या रहेगा, कॉम्पेटिवली हाई, क्योंकि बता ना ये तो ज्यादा गर्म हो गया, लेकिन ये थोड़ा कम ठंड, कम गर्म है, कम गर्म है मतलब हाई प्रेशर हो गया कॉम्पेरेटिवली, कॉम्पेटिवली, ये नहीं कि बहुत ठंडा हो गया, ठीक है। ये 40 है तो यहाँ 30 है, 40 है तो 30 है, तो लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, लो और हाई डिफरेंस हो गया ना, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस मतलब प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस मींस प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस इन दोनों जगह पे आया। इस डिफरेंस की वजह से जो ब्रीज चलता है, उसको हम ब्रीज कहते हैं, तो ये कौन सा हो गया, दिस इज योर व्हाट, सी ब्रीज। कितना बजे, 4 बजे सी ब्रीज। 4 बजे और 4 बजे के बाद आता रहता है, इसलिए हम लोग शाम को बीचेस पे जाते हैं वो ठंडा हवा लेने के लिए, साफ सुथरा हवा लेने के लिए, वो क्लीन एयर लेने के लिए बीचेस पर जाता है, जो ओशन से आता है, कितना बजे, 4 बजे। वाई, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट, फोर्स डेवलप होता है, और विंड ब्लो करता है, बहुत ज्यादा स्पीड में ब्लो नहीं करता, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ब्रीजेस। पॉइंट। अब इसका उल्टा हो जाएगा मॉर्निंग के टाइम। मॉर्निंग का टाइम में देखो क्या होता है, मॉर्निंग का टाइम में ये टाइम चेंज कर दे रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। मॉर्निंग का टाइम हुआ तो सुबह सुबह टेम्परेचर बहुत कम फील होता है, ठीक है, धीरे धीरे ठंडा आ रहा है और भी कम हो जाएगा। जैसे समर में अगर बात करें मानसून का, तो भी मॉर्निंग का टाइम मान लो कितना होता है, यहाँ पे जो लैंड का ठंडा हो जाएगा, सपोज हो गया ये मॉर्निंग का 20 डिग्री, ओके। ओशन, बोले ना ओशन इतना जल्दी फिर वो भी ठंडा नहीं हो, मॉर्निंग में सुबह में टेम्परेचर कम होता है, लेकिन ओशन धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, ये भी धीरे धीरे ठंडा होगा, तो 20 डिग्री तक नहीं जाता है, ये जाएगा मान लो इधर 30 था तो चला गया 25, इससे ज्यादा, इससे मतलब कम नहीं जाएगा। अभी भी टेम्परेचर डिफरेंस है, सुबह में मॉर्निंग का टाइम दैट इज 5 AM टू 6 PM, ठीक। इस टाइम में भी प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, और इस टाइम में प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड विल ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ कम टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर, यू नो दैट, लो टेम्परेचर मींस हाई प्रेशर, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हाई प्रेशर, और इधर क्या हो गया, लो प्रेशर। तो देखो अब डायरेक्शन चेंज हो गया, इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। ये लैंड ब्रिज है और ये सी ब्रिज है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द सी ब्रिज एंड दिस इज लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज डेली चलता है, मॉर्निंग और आफ्टरनून का टाइम या इवनिंग टाइम मान, ये मॉर्निंग टाइम में कौन सा ब्रिज चलेगा, लैंड टू सी, दैट इज लैंड ब्रिज, और इसको लोकल विंड भी बोलते हैं। और इवनिंग टाइम में कौन चलेगा, हाई टू लो, दैट इज सी ब्रिज। तो ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या है, लोकल कोस्टल एरिया पे चलने वाला लोकल विंड है, जो कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से चल रहा है। और यही विंड को अगर हम लोग सीजनली एक्सटेंड कर, देखो डेली क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, एकदम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ठंडा, 3-4 बजे गर्म, ओके, दोपहर में 3-4 बजे आफ्टरनून में गर्मी होता है, तो डेली फेनोमेना हो गया, दैट्स व्हाई इनको हम लोकल विंड्स
बोलते हैं, और डेली लोकल लेवल पे चलता है और डेली फेनोमेना है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो डेली टेम्परेचर डिफरेंस होता है, 24 घंटे में डेली टेम्परेचर डिफरेंस होता है, लेकिन क्या सीजनल भी होता है? हाँ, सीजनल भी होता है। सीजनल होता है, देखो ये टेम्परेचर डिफरेंस समर और विंटर के। तो मॉर्निंग को मान लो विंटर, जो 5 बजे एकदम ठंडा रहता है सुबह, उसको हम लोग विंटर मान लिए। और ये जो 4 बजे, जो 3-4 बजे टेम्परेचर होता है यहाँ पे जो लैंड में, लैंड का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा। लैंड का टेम्परेचर क्या होगा, 3-4 बजे गर्म, वो समर मान। वी आर एक्सटेंडिंग दिस फेनोमेना फॉर समर एंड विंटर। जो डेली हो रहा है मॉर्निंग और आफ्टरनून का, उसको समर और विंटर के केस में समझेंगे। समर और विंटर के कॉन्टेक्स्ट में ले जाना ही थर्मल कॉन्सेप्ट है। सर एडमंड हेली हैज सेड, व्हाट ही हैज सेड, कि इसको हम लोग किस में ले जाएंगे, जो डेली फेनोमेना हो रहा है इसको एक्सटेंड करो। किस पे एक्सटेंड करो, सीजनली। हम लोग इसको सीजनल बेसिस पर समझेंगे, और सीजनल बेसिस पे सीजनल एक्सटेंशन जो होगा, सीजनल एक्सटेंशन वही थर्मल कॉन्सेप्ट है, माइंड इट, ओके। इससे ज्यादा नहीं करना है। सीजनल एक्सटेंशन ऑफ seasonal extension of local winds, that is land bridges and sea bridges। तो यहाँ पे फिर से मैप बनाता है। मैप बहुत बनाना है, इंडिया का मैप तुम लोग ऐसे रफली ड्रॉ करो जैसा मैं कर रहा हूँ, कितना रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना, हो गया इंडिया, सिंपल। एकदम रफली ड्रॉ करना है। तो अभी क्या करना है, देखो ऐसे ये पूरा इंडिया का मैप का सीजनल एक्सटेंशन करना है। तो हम लोग समर देखते हैं। सीजनल एक्सटेंशन मतलब एक सीजन लेते हैं समर। समर में क्या है, ये देखो समर में यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा, इंडिया में कौन सा प्रेशर होता है, लो प्रेशर। इतना मान पूरा इंडिया में। अभी लोकल विंड नहीं है, लोकल विंड का एक्सटेंशन है। लोकल विंड का एक्सटेंशन होगा तो वो सीजनल, लोकल विंड लोकल लेवल पे नहीं चलेगा, एक्सटेंशन है तो वो रीजनल लेवल पे चलेगा। सीजनल एक्सटेंशन मतलब डेली विंड जो था वो अब हो गया समर और विंटर के लिए, और लोकल जो विंड था वही हो गया रीजनल के लेवल पे, मतलब थोड़ा लंबा घूमेगा। लोकल लेवल पे पहले कोस्टल एरिया में चल रहा था, अभी क्या है, सीजनल एक्सटेंशन होने से हम लोग इसको थोड़ा दूरी पे दिखाएंगे, मतलब रीजनल विंड का फ्लो दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लो प्रेशर है, ओशन में सेम टाइम्स क्या होगा, हाई प्रेशर, माइंडेड। ओशन में सेम टाइम हाई प्रेशर होगा, क्यों होगा ऐसा, ऐसा क्यों होगा बोलो। ठीक है, समर में जो सुबह शाम को 3-4 बजे गर्मी होता था, उसी को मान लो सीजनल एक्सटेंशन में समर में हम लोग का पूरा इंडिया का लैंड मास गर्म हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, मतलब प्रेशर लो हो गया, ठीक है। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इधर देखो, इधर क्या हो गया, ओशन, गर्मी आया तो जमीन तो गर्म हो गया तुरंत, लेकिन ओशन सेम टाइम पे उतना गर्म नहीं हुआ, थोड़ा कम गर्म हुआ, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस मतलब प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, अभी गर्म नहीं हुआ, जून आया, समर आया, जून आ गया, समर आ गया, जून आ गया। तो समर में जून आया ना, तो जून में लैंड मास तो गर्म हो गया, लो प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन सेम टाइम पे अभी इतना गर्म नहीं हुआ। यहाँ सपोज 40 डिग्री चला गया, तो यहाँ पर अभी जून में नहीं, जून में तो यहाँ जाएगा, हाँ 40 डिग्री चला जाएगा, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 25 डिग्री, सपोज 25 डिग्री, इतने ही आसपास जाता है, फिर भी टेम्परेचर का डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है। विंड विल ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। So according to Haley, now wind will blow from high pressure to low pressure। एक डायग्राम बना देना एंड दैट्स इट। इस डायग्राम को बना के फिनिश कर देना काम, कुछ नहीं करना। समर लिखना है, एक डायग्राम बनाना है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड्स का ब्लो को दिखाना है। तो ये तुम क्या दिखाया, मॉनसून, मॉनसून किस सीजन में, समर में। और ऐसे करके बॉक्स भी एग्जाम में बॉक्स में डाल के फिगर लिख देना, ठीक है, हो गया काम, हो गया विंड्स का तुम्हारा।
इसमें जो डेटा वगैरह है वो तुम्हारा प्रीलिम्स के लिए यूज हो जाएगा। फिगर हो गया ना समर का, तो समर में क्या हो गया, ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड जा रहा है। जो अब ये इसको लोकल विंड से कंपेयर करो तो कौन सा हो गया, ये सी ब्रिज हो गया ना, लोकल विंड के कॉन्टेक्स्ट में। सी ब्रिज, सी टू लैंड कब चलता था, शाम के टाइम में 3 से 4 बजे, वो डेली फेनोमेनन। अभी सीजनल फेनोमेनन। विंटर में इसका ऑपोजिट कर दो, दूसरा डायग्राम बनाओ। विंटर, इज इट क्लियर टागुन, आर यू देयर? एक दूसरा फटाफट एक मैप बनाओ जल्दी से, क्योंकि मैप ऐसे ही बना के ना प्रैक्टिस हो जाएगा, वो अलग से नहीं बनाना। ये अरुणाचल प्रदेश कैसे आ गया फिर, करके मैप बना, ठीक है, सिंपल एकदम, ज्यादा रफली ड्रॉ करना है इसमें, बहुत कॉर्नर वर्कर नहीं ढूंढना है ना कॉर्नर ढूंढने से खराब हो जाएगा, बस मेनली याद रखते हैं इसको, यहाँ पे ऐसा ऐसा होना चाहिए, इधर ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा, फिर 20-25 बार बनाने से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। मानसून भी द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड व्हाट यू कैन से इंटरेस्टिंग थियरी है ना, सिंपल है। अभी देखो इसमें क्या है, तो हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया में विंटर, यानी तो विंटर, सीजनल एक्सटेंशन था तो समर तो देख लिया, विंटर ये टाइम होगा सितंबर अक्टूबर का, मान लो तो सितंबर लिख देते हैं, विंटर स्टार्टिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में हाई प्रेशर बनने लगता है। सितंबर अक्टूबर मत लिखो, सिर्फ विंटर लिखो, क्योंकि जो पहला थियरी है ना ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं था, क्योंकि 1686 में एडमंड हेली दिया, तो 1686 में इतना नॉलेज किसको था, किसी को नहीं था, लेकिन जितना नॉलेज दिया वही बेसिस था ये। विंटर या हाई प्रेशर, तो ओशन में क्या होगा, सेम टाइम लो प्रेशर, उल्टा हो जाएगा विंटर में, जमीन बहुत ठंडा हो गया, सेम टाइम वाटर इतना ठंडा नहीं होगा, तो वाटर का टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम। टेम्परेचर ले, लो टेम्परेचर मीन्स हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर। Wind will blow from high pressure to low pressure. You want to ask anything, anybody? आज किधर है सब, टीचर्स डे मना रहे क्या? टीचर्स डे में इन्वॉल्व है आज। देखो ये सोचा होगा टीचर्स डे में क्लास नहीं होगा, विंटर में ऐसा होता है, तो ये विंटर का, इसको डायग्राम विंटर का बनाना है, इसे फिगर लिख के इसको भी बॉक्स में डालना है। तो विंटर में ऑपोजिट हो गया, हाई टू लो, लैंड टू सी, दिस इज द डायग्राम फॉर विंटर। नाउ स्टार्ट राइटिंग, तुम्हारा ये थियरी का डायग्राम है। तो जब ये थ्योरी लिखना है, व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट थर्मल कॉन्सेप्ट और क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली, एडमंड हेली, ही वाज अ ब्रिटिश, तो यही समर और विंटर का दो डायग्राम बनाना है, ठीक है, दो डायग्राम बनाना है, एक ये वाला समर का, दूसरा विंटर का। अभी लिखना स्टार्ट करो, फटाफट लिख लो शॉर्ट में थर्मल कॉन्सेप्ट को। तो अच्छा एक बात और लिख लेना इसमें, वो सिर्फ इतना बोला था, इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, समर वाला जो है ना, दिस इज साउथ वेस्ट मानसून, समर में आता है, मालूम है, और इसको लिख लेना इधर नॉर्थ ईस्ट मानसून, विंटर में, विंटर में स्टार्टिंग में, ओके। अब इसको स्टार्ट राइटिंग की क्या करना है इसमें, अकॉर्डिंग टू हेली, मानसून इज नथिंग बट सीजनल एक्सटेंशन, इतने ही लिखना है, कोई बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, नथिंग बट द सीजनल एक्सटेंशन ऑफ डेली फेनोमेना, जो डेली होता था उसको सीजनल बेसिस पे देख रहे हैं, डेली फेनोमेना
तो monsoon is nothing but the seasonal extension of daily phenomena, that is daily phenomena on the, so monsoon is nothing but the due to, अच्छा डिफरेंशियल हीटिंग में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दो, दैट इज phenomena is sea breezes and land breezes, sea breeze and land breeze due to difference in temperature, तभी तो थर्मल कॉन्सेप्ट है, difference in due to difference in temperature, so monsoon is nothing but the seasonal extension of daily phenomena due to difference in temperature, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर between land and sea, ओके। तो ये तुमको डिफाइन करना है, दिस इज व्हाट थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग। स्टार्ट राइटिंग, और दो तीन लाइन लिख दूं, आई होप ये लिख लिया है, इसको मैं ऊपर करते रहूं। सी इन समर you can write summer southwest monsoon blowing from sea to land with ample of moisture and brings rainfall, ठीक है, ये हो गया इसमें समर में, ठीक है। अभी विंटर में देखते हैं, समर में लिख लो और फिर विंटर में, फिर नेक्स्ट थ्री पे भी आता है। Now in winter it is like northeast monsoon blowing, मानसून क्या है, विंड ही तो है, सेकेंडरी विंड तो ब्लो करेगा ना, ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी इन रिवर्स, उल्टा हो गया, ये तो मानसून है, मानसून का मतलब ही उल्टा हो जाना, कंप्लीट उल्टा हो जाना समर और विंटर में। नॉर्थ मानसून ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी इन रिवर्स, in reverse, so moisture less or low moisture winds are coming out from the land. So this is all about thermal concept of heli. I hope you have written this. ये पूरा थर्मल कॉन्सेप्ट है हेली का, और हेली के अकॉर्डिंग यही था, हेली ने बहुत एक्सप्लेन नहीं किया, वो और भी रीजंस को एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, बात समझना, और भी रीजन को एक्सप्लेन नहीं किया जो था। तो यहाँ पर
हेली ने क्या किया, उसी को मतलब हेली क्या के जो सिंपल बात है उसको बता दिया, इसमें बहुत सारा एस्पेक्ट को छोड़ दिया क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैड एक्सप्लेन्ड समथिंग अबाउट मॉनसून. We should not expect much of the explanation from Edmund Halley. Now, whatever the explanation, if we are expecting, we can expect from other theorists which we are coming after Halley, isn't it? तो इसके बाद आएगा, तो वो थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा थ्योरी. तो ये बहुत बेसिक थ्योरी उस टाइम में बहुत सारा इसमें क्रिटिसाइज भी हुआ. ये बहुत सिंपल तरीका से बताया, इसने कोई शिफ्टिंग ऑफ आइडेंटिटी नहीं बताया, सडनली मानसून कैसे आता है, डिले क्यों होता है मानसून में, मानसून का ब्रेक कैसे होता है, और इतना ज्यादा बारिश जो आजकल हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है, कुछ भी मतलब मॉडर्न फेनोमेना को कुछ नहीं समझाया. ये बहुत ट्रेडिशनल पार्ट था. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, तो आई होप टागो इज इट क्लियर. अब आते हैं नेक्स्ट थियरी पर. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट थियरी. टू हो गया. अच्छा, नेक्स्ट थियरी अभी हम लोग सोच रहे नहीं करें, हो सकता है कल से और थोड़ा स्टूडेंट आ जाए. एक बार मैं सबको, क्योंकि कल का क्लास का मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, कल का क्लास बहुत लोग नहीं देखा है तो उसको शॉर्ट में. ठीक है टागो, अभी यही तक रखते हैं, कल से फिर नया थियरी करेंगे. इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में पूरा मानसून को बता दे रहा हूँ, तुम लोग भी समझ जाएगा, और कल से फिर हम लोग थोड़ा स्पीड को इंक्रीज करेंगे जल्दी जल्दी. देखो अभी क्या था, सबसे पहले हम लोग क्या समझ रहे थे मॉनसून को, तो मॉनसून किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट से. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनसून. एक हम लोग मॉनसून समझ रहे हैं, और मॉनसून क्या है, इट इज अरबिक वर्ड, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड दैट इज मौसम. Somewhere it is written like Mausim, somewhere it has been written like Mausim, M-A-U. तो मौसम से लिया गया, मौसम से इंग्लिश वर्ड क्या बना, मानसून. Because Arabians were the first person who has seen the flow of winds. मानसून क्या है अभी बताया, मानसून इज द एंटायर रिवर्सल ऑफ विंड सीजन टू सीजन. तो इस टाइम में क्या होता है देखो, फिर वो तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया मानसून हैज बीन टेकन फ्रॉम अरबिक वर्ड, ये मालूम चल गया. ये भी बोला था तुम लोगों को कि जो अरेबियंस था वो सबसे पहले मानसून को देखा. यू सी द इंडिया, इफ यू ड्रॉ द इंडियन मैप इस तरह का ऐसे बना लो, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ 5 मिनट में भी. फिर नेक्स्ट थ्योरी कल करेंगे हम लोग. तो अरेबियंस में ट्रैवलर, वो ओशन में ट्रैवलिंग करते हुए वो लोग क्या देखा, लोग देखा कि एक विंड समर में आ रहा है और दूसरा विंड विंटर में जा रहा है. जो कंप्लीट रिवर्सल हो गया डायरेक्शन को, okay ना, wind का direction completely reversed. Who has seen Arabians? Because they were merchants, were traveling in the ocean. वो लोग यहाँ पे घूमता रहता था, घूमते घूमते वो लोग सब देखा, और तो क्या किया, बोला यही मानसून है, इसको मानसून नाम दिया. कहना क्यों नाम दिया मानसून, क्योंकि इसका टोटल जो है इफेक्ट उल्टा हो जाता है. समर में ये अंदर आता है, लैंड सी टू लैंड, और विंटर में ये बाहर जाता है, विंटर में बाहर जाता है लैंड टू सी. एंड दिस इज मानसून. कौन देखा सबसे पहले, अरब. तो यही मैं बताया था कि मानसून इज नथिंग बट एंटायर रिवर्सल ऑफ द विंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. है ना, सीजन में क्या होता है, पूरा अपना डायरेक्शन, जो विंड अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है कंप्लीटली, सिंपली बता रहा हूँ, जो विंड अपना डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर लेता है कोई हम लोग मानसून कहते हैं. सब कल करा दिया, कल का वीडियो देख लेना. ठीक है. अब दो थियरी मैंने बोला था, दो तरह का थियरी है, एक क्लासिकल थियरी है और एक मॉडर्न थियरी. तो नाउ वी आर डीलिंग विद क्लासिकल थियरी. अभी हम लोग क्लासिकल थियरी देख रहे हैं.
ठीक है, कल भी मैंने लिखा दिया। तो क्लासिकल थियरी में हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, थर्मल कॉन्सेप्ट आज हो गया। क्लासिकल थियरी में थर्मल कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है आईटीसीजेड का, वो हम लोग कल देखेंगे। कल सब लोग लाइव क्लास में आओ, ठीक है। लाइव क्लास में आने से थोड़ा इंटरेक्शन भी रहेगा और बातचीत भी होगा, तुम लोग को भी कहाँ समझ में आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। वीडियो तो देख लो, कोई बात नहीं, वो इमरजेंसी में, बट लाइव क्लास में कोशिश करो आने का। तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्लासिकल थियरी, वी आर गोइंग थ्रू क्लासिकल थियरी। आज एक थियरी हो गया, तुम लोग के लिए थोड़ा रोक के कल थियरी करेंगे, कल सब लोग आओ, ठीक है। चलो, ओके देन, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। टैगोम, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।